Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं टू डिस्कस पाकिस्तान's win against Sri Lanka in the first T20I. Yeah, I mean, And, very. उस्मान ख्वाजा की भी बात करनी है एंड पे. Yeah, Ashes की बात नहीं होगी. We've Yeah. decided to shelve that. If England don't care Yeah. about the Ashes, so I mean, they why clearly do we? did care, but But if they don't care now. if you guys want to listen to me talk about the Ashes or the SCG test, तो यार Combox. Combox पे Rob Barron के साथ I'll be live at like 1 a.m. at night. So Good luck with that. yeah. Anyway, Pakistan managed to. Pakistan, yeah. I mean, they did really well, man. They managed to defeat Sri Lanka by 6 wickets and 20 balls to spare in the first T20I in Dambulla. Dambula. बारिशें चल रही थी उससे पहले. Yeah. Good job, ground staff. I mean, Sri Lanka is the pinnacle when it Yeah. comes to ground stuff, Yes, right? sir. Anyway, वहाँ पे बारिश हो तो इतनी टेंशन ही नहीं होती. इनके मैच हो ही जाएगा यार. ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छे हैं, वो पूरा ग्राउंड भी कवर करते हैं. Apparently the ground was like covered for 4 days. Yeah. Not just the pitch. The ground. The ground. उनकी जो वो टीम फोटो भी है ना, टीम फोटो नहीं, वो कैप्टन्स फोटो. उसके पीछे कवर्स पीछे है. covers हैं. Yeah. Yes sir. But Blood anyway, covers. Yes. It was a very strong win by Pakistan क्योंकि you know, I know it's only with 20 balls to spare. They could have chased it down much earlier. Yeah, but it wasn't required. You don't often get to see Pakistan kill off a chase within the first 3 overs of the game or the first 3 overs of the second innings. Yes. और वो उस्मान खान थोड़ी बैटिंग प्रैक्टिस भी कर रहा था. हाँ, एंड पे तो वो बस easy हुआ था थोड़ा सा. It was a good toss to win for Salman Ali It Agha. was a good toss too. Yeah, he opted to field first, which was the obvious call. The correct decision. Yeah, it was the correct decision. I'm pretty sure कि शाना का भी toss जीता तो he would have chased. Shanaka. Yeah. It was a slow pitch at the start. There was plenty of turn on offer in the first innings. Damn. Shadab and Nawaz को तो पड़ी है लेकिन मगर अबरार हाँ, turned a lot. I think the most degrees of turn have to be Shadab Khan. You know, वो बहुत, he was turning at a mile. He was. काफी ज्यादा ब्रेक हो रहा था बॉल. Then थोड़ी सी easy होने लगी थी second innings में, उतनी turn नहीं हुई. I feel like the only thing that was consistent was the awkward bounce on occasion. On occasion. On occasion वो ही था भी वो. इतना pronounced नहीं था जितना देखने को मिला हमें पहले. It wasn't a minefield by any No, stretch. no. Yeah, not a minefield, but not easy batting conditions in the first हाँ, innings. क्योंकि there was turn on offer and it was a slow pitch और awkward bounce चलो दूसरी वाली में भी था. But then again, you get your value for shots over here as well. जिसमें साजिदा फरहान और चलो साइम अयूब ने थोड़ा बहुत दिखाया. Yeah, I mean value for shots definitely थी. Batting in the second innings had eased, of course. It had. इसमें कोई शक नहीं है. So Pakistan got the better batting conditions and the better bowling conditions. लेकिन बहराम first 3 overs में अगर chase Yeah. kill कर दिया ना तो I'll give them lot of marks on that. I mean, it's a massive positive. It's probably the biggest takeaway. It is the biggest Yeah, takeaway from this. Pakistan after 3 overs were 40 for no loss. कब देखा है In ये fact, last? when we were live, I remember towards the end of the live, Varun came back and he was like, "How is this game still going on? Pakistan were 40 for no loss after 3 overs." हाँ, उसके बाद तो फिर Yeah. पाकिस्तानियत तो आनी होती है बात. हाँ, थोड़ा सा रींगना तो होता है Yeah. सबको, but they got Zach to. Crawley जिस तरह हमने बोला था. हाँ, crawl करते हैं थोड़ा सा. But yeah, look, 40 for no loss in 3 overs and then they got to their team 50 in 4.1 overs, so 25 balls Yeah. is what took them to get to 50, which we don't get to see very frequently. Yeah. मतलब 200 के स्ट्राइक रेट पे हमने 50 रन मार दिए, पीछे कुछ रह ही नहीं गया. So Yeah. the game was dead and buried there and then, and it is really refreshing. It I'd like is. to say It this. is. I loved it. हाँ, पाकिस्तान का आमतौर पे हम ये देखने को मिलता है हमें कि even in low scoring games they will take eons to 18-19 ओवर में जाके चेज Yeah. हो रहा होता है. they'll fuck up the power play हाँ. और फिर बाद में जाकर कुछ रिकवरी हो जाती है. Yeah. But यहाँ पे तो it doesn't matter what happens beyond the first 4.1 overs because you got 50 for no loss in 4.1 overs. Kill the chase. Yeah. खत्म match. Game Yeah. set match. हाँ. ठीक है? And I think कि you know going into the World Cup this is exactly the sort of performance Pakistan needs. Yes, and this is really good sign कि आपके ओपनर्स या जो भी टॉप ऑर्डर है उसने रियलाइज किया है कि यार पावर प्ले इज इम्पोर्टेंट और हम कब से बोल रहे हैं ये और हमें फाइनली आफ्टर अ ईयर हमें ये देखने को मिला है कि फर्स्ट 3 ओवर्स 40 रन्स. वाओ. Realize Realize. real lies. अच्छा. उल्टा कह गए हो ना. चलो है तो यही ना. Realize real lies. Yeah. समझो इस बात को. It's- बहुत बहुत ही गहरी बात है. It's not justice, it's just us. Yes sir. देखो the biggest takeaway तो ये था लेकिन the best part of this game was just one guy. Kota Hachi bro. Kota Hachi baby. I love that umpire. Shiju CCTV Sam has competition. Kota Hachi. Although शिजू भाई को मैं अभी भी ऊपर रखूं मगर कोटा हाची जो अंपायरिंग कर गया Kota ना, Hachi. हाँ कोटा हाची. Yeah. ठीक है 2 CH है. सही है. Game change हो. बॉय के जो अंदाज थे ये Nonchalant. डिसमिसल दिया आराम से ही उंगली लाया. फिर छक्का जो था उसमें उंगलियां नहीं की बस ये ये ठीक है. वाइड भी ये. वाइड भी ये और फिर वो
डेड बॉल भी डेड बॉल पे तो मैकरेना स्टार्ट होने वाला था। वो भी बड़ा खूबसूरत था। हाँ। जो बंदे की एनर्जी थी ना, चिल में बैठा हुआ था, एनके लगाई हुई थी, या बैठा हुआ तो नहीं था, खड़ा हुआ था। The aura Yeah. of Kota Hachi. टू मच हो रहा है यार, टू मच ड्रिप फॉर अस टू हैंडल। हमसे हो नहीं रहा था। जिसने लाइव देखा, यू कैन रिलेट टू Loved दिस। it. I loved it. या अब मजाक नहीं उड़ा रहे, honestly we loved नहीं, him. मैं बता तो रहा हूँ कि वो लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अंपायर्स LXU LXU में आ चुका है। या शिजू सैम, दो बंदे शिजुपा जी, and Kota Hachi. पहला नाम क्या था इसका? रविंद्रा कोटाहाची। I don't remember. मैं बस Kota Hachi पे ही फोकस किया है bro. एलीट पैनल में दस्ती डाला जाए दोनों शिजू भाई को बाकी सबको निकाल दो। और कोटाहाची को। शिजू भाई का ये कि ही इज अ ग्रेट अंपायर। He is a great शिजू भाई umpire. वाकई सीसीटीवी कैमरा है। वो बहुत अच्छा। कोटाहाची ने कुछ गलतियां तो की हैं। ये तो है। साहिबजादा फरहान will have a bone to pick with him। तो उसकी उसकी रन्स खाए हैं। 50 जो है पहले हो जानी चाहिए थी। या बिल्कुल हो जानी चाहिए थी। उसके रन्स भी ज्यादा होने चाहिए थे, पर वो एक चौका उसका पी गया। बाकी एक उसने डिसमिसल भी गलत या है। वो DRS लेकर पाकिस्तान ने और आउट एक में बहुत लेट डिसमिसल दिया था। हाँ, वो उसको लग रहा था कि ये खुद ही चला जाएगा, लगी तो है। वो क्यों खड़ा हुआ है? हाँ, मैंने उसने कहा ओहो हाँ, मैंने ये भी तुमने करना है जरूर यार। मुझसे उंगली उठवानी है, तो सबको पता है कि लगी है। ठीक है, क्यों मैं अंपायरिंग करूं? ये वाली एनर्जी लाइफ में चाहिए ये मुझे। चाहिए, Yeah. यही चाहिए इस bro। तरह की नॉनशेलेंस जो है ना, उसको मैं आई एस्पायर टू इट। ठीक है, एनीवे। अच्छा खैर, लाइनअप्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पाकिस्तान का यही लाइनअप हमने एक्सपेक्ट की थी खेलेगी। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट फखर टू बी एट 4 एंड सलमान अली आगा टू बी एट 3। Yeah, that was a bit odd. हाँ। I also expected Fakhr to bat in the top 3. हम तो ओपन कराते हैं, मगर वो तो नहीं कराते। जो हम करते हैं वो तो एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन है ना। या सलमान अली आगा 3 was probably the only pain point with respect to the lineup. बाकी तो यार it was a good lineup in the sense कि जो टीम थी उसके हिसाब से यही स्ट्रॉन्गेस्ट 11 बनती है। स्ट्रॉन्गेस्ट 11 यही बन। एंड आई फील कि गोइंग टुवर्ड्स द T20 वर्ल्ड कप, आमतौर पे मैं यूजुअली कहता हूं कि आप एक्सपेरिमेंट करो, बट शुरुआत आप स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप से करो। यहाँ पे आई हैव नो इश्यूज विद दैट। एंड हाँ ठीक है, लेकिन स्टिल आई वुड लव टू सी, अगर कुछ प्लेयर्स को आप लेके गए हो तो अब उन्हें मौका देना चाहिए। अब्दुल समद, ख्वाजा नाफे को खेलना चाहिए। उस्मान तारिक तो वैसे ही मैं मिस कर रहा था कल। फीकी सी हो गई थी दुनिया मेरी। उस्मान तारिक को देखते हैं, 2 गेम्स मिलती हैं कि 1 गेम मिलती है। मुझे लगता है एक ही देंगे ये, अगर अगली वाली जीत गए और तीसरे वाले में बारिश हो जाएगी। हाँ, एक तो खाया जाएगा मैच, एक तो खाया जाएगा, पक्का खाया जाएगा। There's going to be one washout. I have a very very strong feeling, क्योंकि जब दोनों दिन बारिश के इम्कान आते हैं तो एक तो जाएगा। और एक दिन तो थंडर शावर्स हैं। हाँ, थंडर शावर्स are going to be something, right? और वो पता नहीं फिर लाइटें भी जल सकती है उसके अंदर कि नहीं, क्योंकि थंडर आ जाती है। थंडर, Yeah. थंडर। अच्छा खैर, with the thunder. थंडर। पाकिस्तान की तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। श्रीलंका ने KJP को बिठा दिया। हाँ, KJP आई थिंक वाज नॉट फुली फिट। दैट वाज द रीजन दैट वाज गिवन, इसलिए DDS आया। Yeah, I was surprised to see KJP out of the starting 11, but DDS again bowled well. very well. But गेम तो मुकी चुकी थी तब तक। मुक्तदा हो चुकी थी। मुक्तदा हो चुकी थी, but thing is कि Kamindu didn't play. Kamindu didn't play. That was श्रीलंका खेला उसके आगे। Yeah. Who was the second best batter? Probably looked the most comfortable out there. I mean, Lianaj got dropped twice, so I don't know if he was their best batter or not. In terms of score, एक ही तो बंदे ने वो क्रॉस किया, 20 रन एक ही बंदे ने शायद क्रॉस किया। I think so. हाँ, लियनाज ही था। लियनाज ही था वो, जो लियानगी है, हम जान के जन्नत लियानगी उसका नाम है। We like to call him Lianaj. हाँ, I mean, sure, Charita Salanka was probably the second best batter. Apart from that, bowling lineup तो ठीक थी उनकी। हाँ, तुषारा चमीरा frontline seamers, ठीक शना हसरंगा frontline spinners, they also batted till 8. हाँ, and fifth bowler का तो उनका हम पहले ही बता चुके इशू है, लेकिन DDS, श्रीलंका, Shanaka and Lianage make up their fifth bowler. Essentially. I think Sri Lanka obviously lost the game in the first innings. Game was done. 129 का target तो कुछ है ही नहीं. कुछ भी नहीं. And they were slow throughout as well. Like they were 35 for 2 in the power play. वो भी बेहतर कर गए थे, एक टाइम तक तो कोई रन्स नहीं थे। मेरी प्रेडिक्शन 29 थी। मेरी 31 थी। कुसन मेंडिस ने थोड़ी लीव मारी, एक लीव एक डक मारी। उसने कहा थोड़ी टेस्ट क्रिकेट लेके आए हम बीच में। At the 10 overs mark, Sri Lanka were 59 for 4 compared to Pakistan, who even after slowing down in the last 11 balls of the power play were 59 for 1 at the end of the power play. अच्छा मुझे बताओ, 59 for 4 at 10, उधर से आप अगले 10 में मैक्सिमम कितनी कर लोगे? या इन लोगों ने कितने किए हैं? 70? हाँ, That's not a lot. आप 100 कर लोगे, 120 कर लोगे, वो भी 170 पे बन जाता है। बिल्कुल। That's not a good. खैर, यहाँ पे मैं लाइव के दौरान भी कह रहा था कि if you somehow or if Sri Lanka somehow managed to score 150, could be game on, but it could be. It wouldn't have been because the way Pakistan started. But
एटलीस्ट आपको 150 चाहिए था इस पिच के थोड़ा ऊपर. मैच इंटरेस्टिंग करने के लिए. You know, they've got spinners. Something could have happened. Hasaranga Theekshana could eat us. Hasaranga could eat us any day of the If week. you think about it, Pakistan chased this down in 16.4 overs, right? So, in that, whatever, 129 runs that Pakistan score, in 4 overs, Hasaranga takes 1 for 17, and DDS in 2 overs had figures of 1 for 4. So, DDS क्यों नहीं खेला जा रहा था भाई? DDS and Hasaranga combined, you know, they 2 for combined for 21? 2 for 21 in 6 overs. Damn. उसके अलावा तो मारा ही है पाकिस्तान ने, ठीक है, सिर्फ इन 6 ओवरों में नहीं मारा. So I feel कि yeah, Sri Lanka dropped the ball. They did recover slightly from you know overs 10 to 15. हाँ, वो अच्छा पीरियड आया. Yeah, वही एक अकलौता अच्छा पीरियड था where they went from 59 for 4 in 10 overs to 106 for 5 in 15. 47 for 1 in 5 overs. That was their best phase, 47 for 1 5 overs, and then they were 128 all out in 19.2 overs. तो उसके बाद भी वो crumble ही कर गए. पाकिस्तान, as I mentioned, start तो शानदार था. 40 for no loss in 3, 50 for no loss in 4.1. फिर की है स्लो डाउन. Obviously. विकेट भी गिनी. Yeah, 59 for 1 in the power play. जो कि हम सोच रहे थे कि आज तो 60 पक्का टापेंगे. वो तो नहीं, वो थोड़ा सा ज्यादा मांग लेते हैं. But पता है, from their perspective, the job was done. It didn't matter how quick they played beyond that, right? Even at the 10 over mark, they were 93 for 1, and I was like, यार मतलब in a game where you're chasing 129, to be 93 for 1 in 10 overs for Pakistan is a good thing. It is a good thing. पाकिस्तान आमतौर पे होता नहीं है, 71 for 1 होते हैं. नहीं, 2-3 होते हैं. Yeah, true. 4 भी हो सकते हैं. हाँ, 71 for 4 होते हैं, सही है. And then, you know, they slowed down even further after that. 15 overs में they were 119 for 4. Yeah, तो finally 16.4 overs में chase कर लिया. वो जो 5 ओवर थे ना, उसमें 3 विकेटें भी गिरी हैं, स्कोर भी नहीं आया, तो वो हमेशा से पाकिस्तान की अकीलिस हील जो रही है बैटिंग में, वो तो रही है. 10 to 15 overs में श्रीलंका actually scored 47 for 1 and Pakistan managed what 26 for 3. तो वो एक फर्क है. That's the only period in the entire game where Pakistan 10 to 15 ओवर्स का अगर मैच होता ना, श्रीलंका जीत गई भी नहीं ब्रो. सिर्फ उस फेज के अंदर पाकिस्तान गंदा खेला है. बट लोग lots of pros from this game, obviously performances पे आएंगे हम लोग, प्लेयर रेटिंग्स करेंगे. यस सर. उससे पहले मैं एक कॉन पे आना चाहता हूँ. 2 कॉन्स हैं एक्चुअली. एक तो कैप्टनसी है. कौन तला कैप्टनसी से खुश नहीं था मैं. कौन तला wasn't happy. कौन? I mean, obviously he makes the right call, Salman Ali Agha, when he opts to chase. Why did Nawaz bowl his quota? Yeah, he overbowled Nawaz. Why didn't Saim get an over? Yeah, it's weird. Why? Vaz Jr. was really good in the power play, and he didn't bowl him out. Yeah. But I wouldn't give the new ball to Vaz Jr. I remember we were watching the live and Nawaz had given 15 runs in 2 overs. और उससे पहले भी he bowled not that great a first over. हाँ, it wasn't a good over. Yeah. And I said at that point कि अब you know आप दूसरे end से नवाज को replace करके साइम को लाओ या अबरार को लाओ. Those are the obvious things to do. He did neither and he kept giving Nawaz the ball. Nawaz even bowled at the death. None for 14, 4 overs when clearly he was having a bad day at the office. He was having. आपको जरूरत नहीं है नवाज को 4 ओवर देने की जब आपके पास इतनी ऑप्शंस है. 8 bowling options available to you. यही तो पॉइंट है. जब इतनी ज्यादा आप ऑलराउंडर्स के साथ फिल अप कर रहे हो अपनी लाइनअप, तो फिर उन्हें यूज करो ना. Exactly. वरना फिर स्पेशलिस्ट खिला लो. हाँ, फिर पॉइंट क्या है? Exactly. So, I mean, look, over bowling Nawaz was a mistake. He also didn't repay the faith. None for 14, 4 overs was bad. He wasn't good. बल्कि hopefully 2026 में कोई fortunes turn around ना हो गए हो नवाज के. ये ना यूं तो बेहतर है. But Rana Fahum and Nawaz both combined for none for 15, 5 overs. राणा जी ने लास्ट ओवर कराया था पावर प्ले का 10 रन खा गया. आते साल ही चौका पड़ गया था. So if you take out those 5 overs in which Sri Lanka scored 50 for no loss, they don't score anything. बाकी 15 ओवर में they score 78 runs. Right? Which is nothing. ये मसला है ना. ये खैर अब मसला कैप्टनसी है. मसला कैप्टनसी Nawaz had a bad day at the office. He's allowed to have a bad day. ठीक है, उसकी बॉल टर्न हो रही थी, वो बस पिट गया. अब नहीं अच्छे उसने 2 ओवर या 3 ओवर चलो करवा लिए. नहीं अच्छा, एक अच्छा ओवर कराया उसने शायद. वही मैं कह रहा हूँ, 3 ओवर में पड़ गई है तो चौथा क्यों देना है उसे? हाँ, तो वो गलती थी. ऊपर से साइम को क्यों नहीं दिया ओवर? मैं तो वैसे एक दे दो ना. हम कौन सा कह रहे कोटा कराओ, हम तो कह रहे ट्राई करो. हाइंडसाइट में अच्छी बात लगेगी कि वैज जूनियर वाज रियली गुड विद द न्यू बॉल. उस वक्त I wouldn't have given him the new ball. Either Rana ji or Saim Ayub would have bowled the new ball. Absolutely. Along with Salman Mirza. Maybe they thought कि कुछ moisture होगा surface पे. वैज जूनियर को गलत यूटिलाइज करते हैं यार ये. हाँ, ये मसला है ना कि this is not new.
ये हारिस रऊफ को गलत यूटिलाइज करते अब Vaz Jr. does phenomenally well in the power play. Even he takes 1 for 7 in 2 overs, but he's not bowled out. हाँ, And he's not I bowled wasn't out. happy with that हाँ. कि उसको bowl out तो करो. और दूसरी यही चीज थी यार कि if this was a one-off, we'd be like okay, whatever. But जब से Vaz Jr. T20 has खेल रहा ना since this comeback, जब से Hassan की era के अंदर He's T20 taking has the खेल new रहा ball. है. He's bowling in the power play. Consistently being given 2 power play overs by Salman Ali Agha, and I'm not for that. हाँ. Siमिलरली हारिस रऊफ को भी ये यही करते हैं, पावर प्ले में 2 ओवर देते हैं या एक देते हैं, कभी 1 से 2. हाँ, कभी कभार तो न्यू बॉल भी ले लेता हो. हाँ. अब नसीम शाह को अगर डेजर्ट वाइपर्स में देखो जिस तरह उन्होंने यूटिलाइज किया, ये नहीं करेंगे जब वो इवेंचुअली खेलेगा इस सीरीज. Probably, yeah. प्लीज थोड़ा सा ट्रेंड्स देख लो, थोड़े से बॉलर्स की यूटिलाइजेशन देख लो, क्योंकि ये क्रंच गेम्स में हर्ट करेगी बात. I think you and I have to make peace with the fact that they're going to give Vaz I Jr. know, 2 power I play know. overs. We क्योंकि have to. The trend suggests that he'll always bowl 2 power play पर overs. फिर हम सही नहीं होंगे ना, फेयर नहीं होंगे अगर हम ये बात पॉइंट आउट ना करें बार बार. But also, when he's doing well in a game, you bowl him out. हाँ, but he was really good with the new ball. मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन ये हर दफा नहीं चलेगी. उसकी स्ट्रेंथ जो है ना, जिस वजह से वो टीम में, उस वजह से रखो उसे टीम में. और आप खुद एक्नॉलेज करते हो कि he's a great death overs bowler, उसके यॉर्कर्स बड़े अच्छे हैं और थ्रू द मिडल भी अच्छी करा सकता है, तो उसको उन फेजेस के अंदर यूज करें. And Saim Ayub has been one of your highest performing bowlers. Or best performing bowlers. Seriously. He's in the team because of his bowling. I'm not saying give him 4 overs, but Nawaz के 2 ओवर कर Saim को भी 2 दे सकते थे. एक तो ट्राई करते हो ना आप. You give him 1 over at the very least. So not satisfied with the captaincy. और फिर खुद भी 3 पे आना थोड़ा अजीब सा डिसीजन है. फखर है आपके पास. हाँ, I agree. फखर should be the opener in an ideal situation. अगर ये आपका स्क्वाड है और साइम यूब फर्स्ट ड्रॉप होना चाहिए, उस पर तो हम बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं. मसला ये सलमान अली आगा की भी बेस्ट पोजीशन जो है ना T20 क्रिकेट में, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए उसने किया, वो 3 है. और even when he did well for Pakistan versus New Zealand in New Zealand, he was at 3. And versus Bangladesh at home, he was batting at 3. लेकिन फिर फखर 4 पे, आई डोंट नो, मुझे नहीं, मजा नहीं आता यार. मजा नहीं आता जब भी फखर जो है ना एक अजीब से टाइम पे आता है. आई नो ही डजंट परफॉर्म. और फिर पावर प्ले में आई डोंट थिंक सलमान अली आगा को आना चाहिए. नहीं आना चाहिए. पावर प्ले की बेशक 3 बॉलें रहती हो, सलमान अली आगा को नहीं आना चाहिए. किसी ऐसे बंदे को भेजो जो लूट सके उन 3 बॉलों को, क्योंकि इवन इन टफ कंडीशंस वी ऑलवेज मेंशन दिस, पावर प्ले और इंपॉर्टेंट हो जाता है. और वो 3 बॉलें कुड चेंज द आउटलुक ऑफ द मैच. फ्लैट डेक में पावर प्ले इस तरह इंपॉर्टेंट है कि जितना मार सकते हो अभी मार लो. और फिर मुश्किल कंडीशंस में, जो कि पाकिस्तान के लिए तो चलो इतनी नहीं थी सेकंड इनिंग्स में, बट स्टिल इफ इट्स अ टफ बैटिंग ट्रैक यू स्टिल कैपिटलाइज ऑन द पावर प्ले. पहले 6 ओवर में 50 मार लो, 60 मार लो, उसके बाद फंसना ही है. और उसके बाद अगर तो स्लो पिच है तो वो कटर कराएंगे बॉलर्स, आपको सारी जान अपने बाजुओं में मारनी पड़ेगी. वो भी एक फ्लॉड वो है ना, मतलब फ्लॉड तो नहीं है, इट डजंट फेवर द बैटर्स. हाँ, मतलब यू आर नॉट सेटिंग अप योरसेल्फ फॉर success. Yeah. Khair, they do set themselves up really well. I was really pleased to see that they killed the game in 3 overs. हालांकि गेम तो डेड थी आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स. वी ऑल न्यू पाकिस्तान वुड चेस 129 तो आराम से कर लेना था चेस. ये वाले टारगेट्स कर लेने हम चेस. ये तो इजी सीन है. इजी नहीं होते, कभी कभार राणा जी को आगे विनिंग रन्स मारने पड़े होते, रेस्क्यू एक्ट करनी पड़ी होती है, हो तो जाता है ऐसा कभी कभार, बट चेस कर लेते होते. ओवरऑल गुड स्टार्ट टू द सीरीज फॉर पाकिस्तान. अब देखते हैं सेकंड गेम के अंदर वेदर दे गो विद द सेम लाइनअप और दे मेक सम चेंजेस, बिकॉज़ आई फील कि एक आधी चेंज तो बनती है. मे बी नाफे कैन बी सेव्ड फॉर द 30 20. आई थिंक खिलाओ, सबको खिला दो, क्या फर्क पड़ता है यार. सीरीज अगेन, इस सीरीज से कोई सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप टेस्ट कर रहे हो कि ये बंदा जा सकता है वर्ल्ड कप में, ये नहीं जा सकता. 2 चीजें हो रही हैं. एक ये हो रहा है कि यू फाइनलाइज योर स्क्वाड फॉर द T20 वर्ल्ड कप, और दूसरी चीज है कि आपके कुछ प्लेयर्स एक्लेमेटाइज कर जाएं. रिजल्ट्स आर टर्शरी, नॉट इवन सेकेंडरी. टर्शरी है. तीसरी चीज है रिजल्ट. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेप है T20 वर्ल्ड कप की. दीज थिंग्स डोंट मैटर अगर एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत अच्छा खेल के T20 वर्ल्ड कप में जाके हागो, फिर फायदा. हगोनगल्स हो जाए. आगे 3-0 श्रीलंका को मार दिया, वहां पे सुपर 8 में नहीं पहुंच रहे, फिर फायदा क्या होगा? फिर तो जीरो फायदा है, जीरो. बट आइदर वे ठीक है, वीव डिस्कस्ड द कैप्टनसी कौन, एंड आई फील के निटपिकी हो जाते हैं हम, अगर हमें लाइफ में भी तब चढ़ी. नहीं नेटपिकी होना पड़ता है, क्योंकि क्रिकेट गेम ही ऐसी, और स्पेशली T20 क्रिकेट ऐसी है कि फाइन मार्जिन्स वाली गेम है. यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑन द ऑपोजिशन एट एवरी टाइम, कि मैं कहीं भी इसे रूम ना दे दूं कि ये कम बैक कर सके, और इस तरह की चीजें कर सकते हैं हर्ट पाकिस्तान को इन द लॉन्ग रन. और कप्तानी में तो आपने रूम दिया ही दिया. हाँ वही. बट देन पाकिस्तान फील्डिंग, they've been a really good catching side.
दो कैचेस छोड़े, या एक ओवरथ्रोस थी. अब ओवरथ्रो तो चलो खैर है, कभी कभी हो ही जाता ग्राउंड है. फील्डिंग वाज ऑलराइट वैसे. Yeah, overthrow costs you 1 run. Baki fielding and catching was great, but the two drops. Especially that Saibzada Farhan's drop. The Saibzada Farhan drop in particular was bad. Ek to Lianage was on 4. Lianage. And he ends up scoring 40. And Saibzada Farhan ke haathon mein aa gayi thi ball. wo. If you're manning the boundary or riding the boundary, you catch those. Popped out, Yeah. went for a 6. Yeah. Saibzada Farhan, why is he boundary riding by the way? Or especially इतनी hot area पे. मुझे भी नहीं समझ आई. I would keep him in the inner ring circle. ठीक है, बल्कि I would hide him. Hide इतना भी नहीं है, hide नहीं. I would hide Salman Mirza. Who? I would hide him. I feel like the weakest fielder in yesterday's team was Salman Mirza, and then it was Saibzada Farhan. Farhan के कुछ good days भी आए हैं. हाँ, वैसे कैचर सेफ है वो. हाँ. But then again, मैं confident नहीं हूँ उसकी फील्डिंग पे यार. थोड़ा lethargic तो है. Running between the wickets was quite poor. I forgot about that. वो भी तो एक कौन है? Running between the wickets, पहले 3 बन रहे थे, 2 लिए, 2 बन रहे थे, 1 लिया. यही होता रहा. हाँ, उसकी स्ट्राइक रोटेशन बेहतर थी साहिबजादा फरहान की इस दफा. बट देन अगेन ये वाली चीजें भी एक रन ऐड करती हैं. बिल्कुल. और मतलब कि काफी क्लियर ट्रिपल को डबल कर दिया, क्लियर डबल को सिंगल कर दिया. दिस हैपेंड लाइक 4 to 5 times in that साहिबजादा पार्टनरशिप, राइट? सो अब you know ठीक है, ये भी कौन है, बट they didn't need to run the extra runs, I suppose. नहीं, because स्कोर ही छोटा था. ये बात नहीं होती. बट खैर, एक आपकी अपनी कमिटमेंट होती है ना. 3 कॉन्स हो गए, कैप्टनसी हो गया, एक फील्डिंग हो गया और एक रनिंग बिटवीन द Yeah, and in the fielding, I agree. Saibzada's drop is worse. एक तो लियाने के था भी 4 पे. Game would have been done way earlier had he caught that. हम भी जल्दी जाते घर. Salman Mirza drops Lianage or Lianage on 21. That's an interesting one. I was really on the fence with respect to adding that as a note. But then again, my point was सलमान मिर्जा की जगह कोई और होता, उसने पहुंच जाना था. पहुंच जाता उस बॉल तक. I don't know whether it clips his fingers or not. It did not. Even इतनी सी दूर थी. Yeah, even if it doesn't clip his fingers. ये विराट कोहली कई दफा बात करता था कि I work so hard on my fitness कि I get to balls that others don't even get. Yeah. ठीक है, तो सलमान मिर्जा की जगह वाकई अगर कोई और होता तो वो पहुंच जाता. अगर उस क्लिप को आप वापस देखो ना, उसका रिएक्शन देखो, जब वो हुई है वो यूं था फिर भागा. हाँ. तो वो 1 सेकंड का पॉज ही जो था ना, उसी ने गेम क्या कैच छुड़वा दिया. Yeah, and it doesn't matter obviously because देखो, because at the end of the day they won the match. They won the match. और एक आधा कैच तो वैसे भी ड्रॉप हो जाता है, but it's the nature of both catches which does need to be highlighted. Boundary rider needs to be gobbling those catches, और फिर सलमान मिर्जा needs to be a bit more agile to be able to get to the ball. वो फिर आगे ड्रॉप भी कर दे तो चलो ड्रॉप कर दिया, मगर ये पहुंचा नहीं. ये मसला था यहाँ पे. जिस तरह उस दिन वो एशेस के अंदर विल जैक्स वाला ड्रॉप देखे नहीं, वो रोप को देख रहा था, उसने पूरा अपने आप को सेट किया, फिर वो रोप देखने लग गया, ड्रॉप हो गया. Wow. तो फिर इस तरह की चीजें हाईलाइट हो जाती हैं. सलमान मिर्जा डज नीड वर्क इन हिज फील्डिंग. ही इज पुटिंग इन अ शिफ्ट. ऐसी बात नहीं है, मेहनत कर रहा है. I've seen improvement as well. Yeah, definite improvement. ये नहीं है कि बिल्कुल ही वो लेथार्जिक खड़ा होता है. हाँ, ट्राई वो कर रहा है. कोशिश कर रहा है. उसने ऑब्वियसली ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली, ट्राई कर रहा है. यू नो, तो वो अपनी उसकी फुल एफर्ट है. बट या ही उस नीड्स टू एफर्ट बी पे फुल मार्क्स है. he needs to be better, especially Hassan is someone who keeps fielding हाँ. in very high regards. Standards ऊपर रखता है वो फील्डिंग के, और वो आप हमें नजर भी आए. There's been an uptick in Pakistan's fielding and catching since Hassan has joined the ranks and become white ball head coach. और bowling तो जबरदस्त चलती ही आ रही है. अच्छी The fact that you've bowled Sri Lanka out for 128 in 19.2 overs means के even though you killed it in the power play or the first 3-4 overs, this game was won for Pakistan by the bowlers. Yeah. मैच तो बॉलर्स नहीं जिताया ना आपको. 128 क्या ही स्कोर है. 129 चेस करना तो आजकल कुछ भी नहीं जोक. आजकल क्या कभी भी थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ T20s 140 वाज दैट स्कोर वंस अपॉन अ टाइम, जो होता था कि शायद कर लो आप क्या कहते हैं डिफेंड. 129 was never that sort of score that could be defended. कभी हुआ होगा, बहुत कम इंस्टेंसेस हुई होगी T20 क्रिकेट. ऐसी बात नहीं है कि कभी भी नहीं हुआ. और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहा था, सारी सीरीज के अंदर, टेस्ट और ओडीआई सीरीज के अंदर हर मैच हारे हुए थे. They had to chase 120 odd in that one T20 आई. They lost. तो हुआ तो है. और हम सोच रहे थे कि आज शायद जीत ही जाए. मगर फिर वो भी तो एक स्टोरी है ना, जो मोहम्मद आसिफ ने अपेरेंटली वीना मलिक को कहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया के टूर पे एक भी मैच नहीं जीतेंगे. और क्योंकि वो आसिफ ने कहा था स्पेसिफिकली, I might take it seriously. Although there are a lot of layers to this. Chinese whisper बहुत heavy है इसके अंदर. वीना मलिक बीच में आ गई है. वीना मलिक आ गई थी काफी अरसे बीच में थी bro. तो एक टाइम आया था वीना मलिक एक रमजान शो करने लग गई थी. Yeah, that was and she weird. interacted with a jinn. I've seen that. Yeah. Weird. I mean, stuff. Television in Pakistan can throw some real gems at you. Yeah, love it. Yeah. Love it or hate it, can't ignore it. देखो, वीना मलिक was a sensation whether you like it or not.
उसने आग तो लगा दी थी। आग लगी हुई थी ब्रो। हाँ। यहाँ पे आसिफ कभी दुबई में पकड़ा गया एयरपोर्ट पे, कभी वीना मलिक के साथ सीन चला हुआ है। वो वीना मलिक ने इंडियन एक्टर के साथ भी सीन डाल दिया था। वीना मलिक वो बिग बॉस में गई हुई थी शायद, कोई बिग वीना मलिक वहां पे मैगजीन फोटोशूट्स में मूवियां की है वीना मलिक ने वीना बॉलीवुड में। मलिक पे हम इतना क्यों आ गए, मुझे नहीं पता, बट लाइक मैसिव रिस्पेक्ट फॉर रियली सक्सेसफुल करियर मैन। ऑलराइट, ओके आगे चलें। आगे प्लीज चले। बहुत लंबा हो गया वीना मलिक का पार्ट। अच्छा, आई थिंक आ जाते प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कस कर लेते और रेटिंग्स दे देते। हाँ, मगर उससे पहले तुम बता दो सबको फिर कि जियानी से मैं ख्वाजा से पहले करूंगा वो। चलो अब फ्लो आ गया, अब आ गया। नहीं प्लेयर रेटिंग्स कर रहे हैं हम। अच्छा, so where do you want to start? टॉप से स्टार्ट करते हैं। साहिबजादा फरहान। Yeah, Sahibzada Farhan, it was a very strong start. Yeah. I felt that first over he's strong off his legs. Back-to-back boundary शायद मारी थी. There was a glance and there was a flick. Yeah. ठीक है, तो वो तो शुरू में ही उसने statement कर दी. He played really well down the ground. Yeah, he was really strong down the ground. Yeah, really good 6 down the Yes, ground, and then there was a 4 down the ground as well. उसके बाद यार, I mean, there was one whip off the hips for 6. Yeah, brilliant. ठीक है, और एक इसने up and over the covers चौका मारा. वो अच्छा था. Yeah, really good चौका. एक इसका चौका पी गया कोटा हाची. और वो जहाँ पे 31 बॉल 50 होनी थी, वो 34 बॉल 50 हुई। Yeah, 34 के 35. 35 बॉल 50 हो गई. हाँ, लेकिन चलो ठीक है। वो जुल्म हो गया उसके साथ. थी उसकी 31 बॉल 50 because he went for this swipe. It hit his glove and went to the fine leg fence. स्वीप और स्वाइप के बीच में कोई चीज थी, कुछ था वो. हाँ, उसके क्लियरली ग्लव पे लगे। बहुत हेवी ग्लव लगे. वो तपा भी था. उसने कहा था ग्लव लगे मेरा. कोटा जी ने बोला नहीं, लेग बाय बोल दिया। Yeah. तो बोल दिया। Yeah, वो बेचारे के 4 रन वहां खाए गए. कोटा जी ने बोला कह दिया ना बस। It should have been a 31 ball 50 and he ends up with what, 51 of 36. It should have been 55 of 36. However, at one point Farhan was 31 of 14. Yeah. So if he realizes his full potential, he could be even more explosive. So अफान बेग ने लाइव में स्टैट दिया था कि 10 डॉट बॉल्स अक्रॉस हिज इनिंग्स थी। एक स्टेज पे जब वो आई थिंक 31 और 14 ही था तो 2 डॉट बॉल्स। Yes. So that's a great thing जो उसने एड्रेस की और उसने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि आई नीड टू एड्रेस दिस एंड ही इज वर्किंग ऑन इट। सो कूडोज टू दैट। इंप्रूवमेंट जहां भी आएगी ना, एफर्ट जहां भी आएगी, हम दोनों तो यहाँ पे तारीफ करने के लिए बैठेंगे। I love it when players are not in denial, Yeah. when they're not stubborn, ढीठ नहीं बने होते. अगर कोई गलती आप कर रहे हो तो उसको acknowledge करो. Sahibzada Farhan is working on this. It's evident that he's working on this, and honestly, not a lot of Pakistan batters are informed anyway. Yeah. So even if he's slowing down, और यहाँ पे slow down करना उसका इतना मसला नहीं है because the game is dead. जीरो मसला था Him मुझे being 31 or 14 has sealed it. Yeah. ठीक है, और वो आपने एक चीज ऐसी कर दी है ऊपर जाकर जो आपको हमें तो देखने को नहीं मिलती पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर. There are no explosive starts No. in Pakistan cricket, right? So we got one, and I feel like him being 31 or 14 is already a big victory. Yeah. Because you know he can do that. Yeah. Great stuff on working on your dot ball percentage को नीचे लाने में. Running between the wickets still a slight issue, and that catch drop. Yeah. थोड़े से वहां पे मार्क्स I feel like dot ball percentage पे तो काम कर रहा है वो बेहतर करने की, but those are 2 areas that he really needs to improve. Running between the wickets and fielding or catching in particular. Also, Sahibzada Farhan made a name for himself in this PSL season जो last है by smashing spin in the power play. He hasn't been doing that in particular. Pace को ज़्यादा मार रहा है. साइम ने मार दिया ना. साइम ने बड़ा खूबसूरत मारा था that inside out 6 over covers. अच्छा खैर, फरहान decent, really good outing. Really good. I wouldn't dock off any marks for him slowing down because they could afford to. अगर सिर्फ बैटिंग की बात होती तो I would have given him 9, लेकिन क्योंकि फील्डिंग और रनिंग बिटवीन द विकेट्स के मैं 0.5 काट के 8 दे रहा हूं. हाँ, आई थिंक दैट्स फेयर. इतने तो कटने चाहिए क्योंकि हम अब आ गए हैं इस स्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफ असेसमेंट. नहीं, अब तो T20 वर्ल्ड कप है भाई. हाँ, 0.1 भी काटूंगा मैं. वो लीनियंसी जो थी ना, एटलीस्ट मेरी तरफ से थी कि मुझे वो चौका बड़ा पसंद आया था, वो खत्म. मेरी तरफ से नहीं कभी भी. आई एम नॉट गोइंग टू बी लीनियंट एंड मे बी 6 months ago I would have given him 9. 8. यहाँ पे 8 बनता है उसका. But love it, man. I love to see him go or go berserk, tee off at the start. This is what Pakistan requires of him. Yes, sir. Yeah. Sayam Ayub did not bowl. Yeah. Hit a crazy 6 against spin. That was the shot of the match. Theekshana was bowling. Saim had faced like 2 deliveries. ठीक है? He literally. और बेराम उसको कह रहा था यार सिंगल ले, साहिबजादा फरहान को आने दे. He smashes spin. Yes. Saim ने कहा shut the hell up, bro. Saim with that shot also proves that he can bat at first drop because he can take down spin. But that shot, I mean, hold the pose, baby. Inside out, up and over the covers for 6. खूबसूरत. बहुत ही खूबसूरत. जबरदस्त छक्का.
वाकई था। Yeah, short of the game. उसके बाद भी यार there was a rock back and slap versus spin. जब मारा है तो अच्छा मारा। Yeah, he hoiked the ball over fine leg as वो well. उसका अपना रीजन, वो उसका जहाँ region पे फील्डर नहीं लिया हुआ था शाना का। हमने बोला भी था। हाँ। I was like सादी they've taken short fine leg, साइम को जोन दे दिया पूरा। उसने एक होइक मार दी और वो भी उसने स्पिन के खिलाफ ही मारी थी। पेस के खिलाफ there was one really खूबसूरत किस्म की flick. Yeah, aerial flick. वो He also slows down a bit, and 24 of 18 is a better effort than it seems. डॉट बॉल्स थी थोड़ी ज्यादा, मगर शुरू में तेज था। हाँ, लेकिन एक दो दफा इस तरह आए थे, 2-3 डॉट बॉल्स consecutive. Yeah, I think he was also like 20 of 12 or something at one point. खैर 24 of 18. He does get passing marks from me. Definitely. 6? नहीं, I'd give him 7. क्यों? क्योंकि he's a part of that opening explosive partnership. Then again, 60 तो क्रॉस नहीं किया। 6.5 कर दो ना, तेरी ना मेरी। चलो 6.5। हाँ, उस तरह हाँ, एंड में तो नहीं होगा और लीनियंट हो गया। एंड में स्ट्राइक रेट इतनी तेज नहीं थी, but what he does a job at the start. And this is the guy who's scoring ducks for fun. Yeah. ठीक है, for him to score 24 of 18. हाँ, good thing duck नहीं है। हाँ, और प्यारी बैटिंग की। I feel के गेम किल कर दी तो मैं उसको इसलिए 0.5 ज्यादा दे रहा हूँ। आइंदा से ना साइम डक नहीं करेगा तो 1 पॉइंट मिल जाएगा। हाँ, 1 पॉइंट उसको वही मिल जाएगा, but 6.5 seems fair. I feel like he would have gotten purchase off the surface as well. इसकी bowling चलनी थी, but नहीं मिली। First drop cousin Sal. या कजन साल की कैप्टनसी की तो बात कर ली हमने, ठीक है। 3 मिस्टेक्स थी ना, डिडंट बोल आउट वैज जूनियर, डिडंट बोल साइम एट ऑल, ओवर बोल्ड नवाज। 3 गलतियां ज्यादा हैं, सही है। और उसके बाद what 16 of 11? Yeah, I wasn't too impressed, man. Yeah. I haven't been impressed at all. He isn't getting passing marks from me, पहले ही बता दूं। 2 चौके थे, वो भी एक ठीक था बस, वो when he made love to the ball. ठीक शाना। हाँ, he did make love to that ball. punch off the back foot through the covers versus spin, that was a really good 4. बाकी जो एक हसरंगा को चौका मारा था down the ground, that was a bit of a mow. चौका था, चौका है। मतलब जैसे मोह है तो मोह है, तुम्हें पसंद नहीं है चौका तो चौका है ना। चौका तो चौका, but still I don't think he did well. I'm not giving him a good grade. He's not getting passing marks 3. 2. चलो। Yeah. अब तुम लीनियंट हो गए हो, किस बेसिस पे 3 दे रहे हो? मैं पता नहीं, मैं 2 क्यों दूं? तुम 2 तो मैंने इसलिए मैं 2 दे रहा हूँ, making love to that ball. So I'll tell you what I've given marks for. 2 चौके 2 पॉइंट। मैं तुम्हें बताता हूँ। 1 पॉइंट उसका for that चौका जिसमें he made love to the ball, और दूसरा पॉइंट है कि 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट है। 16 of 11 यार, that warrants a point. 2 चौके तो 3 मैं दे रहा हूँ। अच्छा, तुम 3 दे रहे हो, मैं 2 दे रहा हूँ। 5 से नीचे मैटर ही नहीं करता। बैटिंग से ज्यादा मार्क्स कटते हैं कप्तानी पे यहाँ। 3 गलतियां ज्यादा हैं। फख्र ज़मान। 5 of 10 is not his rating, it's what he did. और स्टंप हुआ है वो DDS पे। DDS जहां पे बेरहम ने बोला इसी ओवर में खत्म कर दे फखर। मैंने कहा मुकाओ यार, DDS आगे इसी ओवर में खत्म 21 रन रह गए और फखर ने कहा ये लो, मैं तो घर जाऊं। To be fair to him, no one could play DDS. 12 बॉलों पे 4 रन, 1 विकेट। 1 for 4 in 2 overs is great, but then again game was dead. क्या ही कहेंगे। फखर ज़मान। बॉल थोड़ी बैठी है और वो मारने जा रहा था, बट उससे पहले क्या कर रहा था? उस पे तो कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। उससे पहले भी क्या कर रहा था? आकर टुक टुक टुक। यार ये माइनस वाली इनिंग्स थी। माइनस वाली इनिंग्स है ये, माइनस वाली इनिंग्स है। 5 of 10. I know it doesn't matter in the scheme of things because the game was won. लेकिन then again T20 वर्ल्ड कप सर पे है। फखर ज़मान एक तो वैसे ही आउट ऑफ पोजीशन ये खिला रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं कि फखर या बाबर में से एक जाता है। और ये परफॉर्मेंस व्हेन जब आपके सर पे तलवार लटकी हुई है कि भाई वर्ल्ड कप में लेके जाएं तुम्हें या नहीं, इस परफॉर्मेंस की बेस पे तो नहीं जाता यार ये। I love फखर। वर्ल्ड कप में तो जाएगा। I'm a MILF. Yeah. Man, I love फखर। Man, I love फखर। वर्ल्ड कप में तो खैर हमें पता है सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ पता है ना, अगेन मतलब हम अपने रैशनल पर even with their strategy, पाकिस्तान जिस तरह खेल रही है, if Shadab Khan is in the team, then Fakhar and Babar both can't feature in the starting 11. And Fakhar, this was a really important series for Fakhar with respect to bagging a first or bagging a spot in the first team. ठीक है, starting 11 के अंदर 5 of 10 से नहीं होना वो। मगर खैर फिर आप सोचते हो कि यार अगर सलमान अभी 3 पे खेल रहा और बाबर ने बाद में आना, तो सलमान 3 पे खेल क्यों रहा है? बाबर को भी मैं ओपन कराऊं, मैं तो 3 पे ना खिलाऊं। मैं तो ओपन ही कराऊं। मगर अगर ये लोग 3 पे खिलाना चाहते हैं तो फिर why is Salman playing at 3 right now? Then Salman should play at 4. Exactly. और 5 और 8 और just
आके डिफेंड और DNB, क्योंकि she knows apparently fit now. I love DNB bro. Yeah. हाँ. Shaheen Shah Afridi by the way has made a recovery, very swift recovery. उसका इंटरव्यू आया, उसने कहा कि हफ्ते के अंदर मैं फिट हो जाऊंगा. बहुत अच्छी कॉल थी PCB की to call him back from the BBL. रूमर्स आ रहे थे कि कल किसी ने चैट में लिखा हुआ था कि PCB ने जानबूझ के उसे बुलाया BBL से वापस, कि बहुत गंदी परफॉर्मेंस आ रही थी उधर. परफॉर्मेंस की तो बात नहीं है, मगर I also felt कि अगर सीरियस नहीं है ना इंजरी, they might play him again. क्योंकि वो तो अपने पैसे बनाना चाहेंगे बिग बैश लीग वाले. So rather than risking aggravation of injury, you might as well call him back and put him in rehab with Dr. Javed Mughal. Really nicely done. Good job. Credit to the PCB. ज्यादा देते नहीं है, ये इस चीज पे ले लो, शीनो को सही मैनेज किया, and I'm really glad to hear कि he'll be available for the T20 World Cup because he's probably the first name on the team sheet. Has to be. One of the first. मतलब कि your front line pace bowler, left arm quick and smash it, good fielder. जिस तरह सलमान मिर्जा बॉलिंग कर रहा है, हाँ भाई, जिस तरह सलमान मिर्जा बॉलिंग कर आएंगे उसके ऊपर. फखर को -1 दे रहे हैं, -1 से लेके -50 के बीच में जो देना है, क्योंकि यार माइनस है. You're fighting for a spot in the starting 11. We expect better. हमने पहले भी कहा था प्रीव्यू के अंदर that this series is going to be extremely important for two individuals, फखर जमान and नसीम शाह. उनका चांस है. Yes. तो make most of your opportunities, and this wasn't it. 5 of 10 was pathetic. Even if the game is dead, it's still bad. उस्मान खान ने क्या किया था बैट से? Not out गया था, बहुत आहिस्ता खेला था. It doesn't matter. He kept well though. नहीं, he kept well. एक सीधी छोड़ी थी. एक फंबल था. Shadab I think was bowling the Shanaka. It was good कि he held on to that catches. Yes. Held on to that catches. On those catches. जो भी यार held on to those catches. Yes. उसके बाद I wasn't confident in his keeping. नट से पकड़ा था यार वो. Yeah, well, that one Shadab Googly. टेक्निक तो नहीं है इसकी कीपिंग वाली, लेकिन चलो अगर एटलीस्ट क्या, मैं डरता हूँ ना यार. डरता तो मैं भी हूँ. ये क्रंच मोमेंट्स पे छूट सकती है. He is a serviceable keeper. बट फिर मैंने अली भाई से उस दिन पूछा था कि यार मैंने तो आई हैव नेवर सीन ख्वाजा नाफे कीप, तो यू टेल मी. एंड ही वाज लाइक ओके असल उस्मान टाइप ही है, और है नहीं ऑप्शन. तो इफ ही इज आल्सो सर्विसेबल, तो अब उस्मान को खिलाते आ रहे हो तो उसको फिर लेकर जाओ. ऑप्शन है ही नहीं कोई, अब क्या करें. या लुक, आई मीन ही इज बेटर देन आजम खान एज अ कीपर. श्योर ही इज बेटर देन साहिबजादा फरहान. हां ठीक है. हां है उस्मान खान ही है, अब क्या करें. ही इज बेटर देन यूनुस खान, तौफीक उमर. Obviously. These people have kept wicket for Pakistan. तौफीक उमर ने तो रिप्लेसमेंट आया था मैच के बीच में. मुझे यूनुस भी याद आ रहा है. यूनुस ने 2-3 ODIs में की. यूनुस की मुझे बॉलिंग भी याद है टेस्ट क्रिकेट में. Not bad bro. He swung the ball. उसने 1-2 विकेट ली है. यूनुस खान थोड़ा सा धोनी भी करवाता था ना उसी टाइप की. तो काफी लोगों ने विकेट ली हुई, मगर मुझे याद है यूनुस एक्चुअली बॉलिंग करा रहा था एक सीरीज के अंदर. वो वाली सीरीज यार, द श्रीलंका सीरीज बैडली. एनीवे, किसकी बात करते हैं? उस्मान खान. यार नहीं, बैटिंग में मैं क्या नंबर काटूं जब स्कोर था नहीं और वो नॉट आउट है. आई डोंट केयर कितने रन्स किए, किस स्ट्राइक रेट पे किए. गेम वाज डेड, ही जस्ट स्टक अराउंड. अपनी बैटिंग प्रैक्टिस कर रहा था. अपनी बैटिंग प्रैक्टिस कर रहा था. बाकी तो एनए मिलता है. आई स्टिल फील कि इवन दो आई गेट योर रिजर्वेशंस, मुझे भी डर लगता है. एंड ही डिड फंबल अ बॉल जो कि कैच नहीं था, रेगुलर फंबल थी. But he should be gobbling those. इतना तो चलता है. But the catch that he takes with his nuts and the low catch was really later. वो low catch तो बहुत अच्छा था. और nuts वाला भी यार, चलो eventually even though he fumbles it, he holds on to the ball with his nuts. Still counts for something. I would like 3 balls होगी नहीं उसकी. I would like to give him a passing grade. He will get a passing grade. I'll give him a 6 बनता है. ठीक है. क्योंकि कीपिंग पे तो आप उसको दोगे यार, जिस गेम के अंदर कोई कॉस्ट नहीं करती ना उसी कीपिंग, उसमें वो प्लस में ही है. वो पॉजिटिव है. हाँ, पूरा पॉजिटिव में. एंड एट दिस पॉइंट यू आर नॉट स्पॉइल्ड फॉर चॉइस. यू आर प्रोबब्ली गोना हैव टू गो विद उस्मान खान एनीवे. शादाब खान, player of the match. Yes sir. What a comeback, man. Comeback. First over in his comeback game after surgery and rehab, Shadab Khan strikes twice. Yes sir. और बड़ी विकेटें. कुसाल मेंडिस को आकर आउट करता है, और उसके बाद करता है ये किसको आउट? DDS को. DDS gets undone by the wrong one, जो caught behind था, the ball that is caught by Usman Khan with his nuts. और उसको conventional leg break से LBW करता है कुसाल मेंडिस को. That was a good one. Yeah, that was a really good ball. And he was getting lots of turn as well. So in his first over, he concedes 3 runs, takes 2 wickets. Ultimately ends up with 2 for 25 in his 4 overs. Yeah. Bats well. 18 of 12. Unbeaten. दो चमीरा को जो उसने चौके मारे थे. वाह, खूबसूरत एक कट.
और एक वो पुल, यही फर्क है ना, गेम तो शादाब खान के लिए भी डेड थी, मगर शादाब खान स्कोर्स एन अनबीटन 18 of 12. ही इज द रीजन पाकिस्तान विन विद 20 balls to spare, वरना वो और कम होनी थी. और मुझे चौके भी पसंद आए उसके, बड़े अच्छे एक जो इसने निकल के मारा ना पुल पे, दैट वाज प्रोबेबली हिज बेस्ट शॉट. एक इसको मिस फील्डिंग ने चौका दिया, लेकिन एक कट भी अच्छी थी. कट भी अच्छी थी. द कट शॉट वाज आल्सो वर्सेस Chamira, and then I think very next ball he skips down and pulls him for 4, and then when he awkwardly sweeps the ball, वो मिस फील्ड पे चौका हो गया था. बट आई थिंक he deserved player of the match. हमने लाइव के एंड पे भी यही कहा था कि शादाब का ही बनता है, because those 2 wickets derailed Sri Lanka. We've often spoken about 2 things with respect to Sri Lanka. Sri Lanka is top heavy, उनके top 4, अब तो top 3 था ना, KJP wasn't there. Top 3 को निकाल लो तो आधी गेम वहां पे खत्म हो जाती है. Heavily ran to the top 3 or top 4 Sri Lanka, and then weak 5th bowler. ये उनके मसले हैं ना, क्योंकि उनका जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर है ना, they're not as good. Let's be real. Even if we think Janith Liyanage is underrated, he's not the next big thing, right? इस तरह तो वो he fills up a role. हाँ, जो इसने ये किया है आज वही करना है. वही करना है उसने, और वो थोड़ा बहुत एक आधा ओवर भी करा देगा आपको. बट शादाब का वो ओवर जो है ना, that wins Pakistan the game, and then his batting is good too. Unbeaten 18 of 12, 3 चौके. नंबर कटते हैं कहीं पे? नहीं, 9. Took a catch as well, 10. एक गंदा ओवर था, एक फुल टॉस करवाई थी गंदी वाली. एक ओवर इसका ना, his figures are 2 for 25 because he bowled 1 poor over. I think it was his 3rd over. 9.5 कर दो. परफेक्ट गेम नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी गेम, बहुत अच्छी गेम थी. एंड दिस इज द सॉर्ट ऑफ कमबैक गेम यू नीड टू कम एंड स्टेक योर क्लेम. उसने बोला भी है ये कि कमबैक गेम्स आर ऑलवेज ट्रिकी बिकॉज़ यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ ऑल ओवर अगेन. अब द अलाइनमेंट और एस अलाइनमेंट इज गुड. 1.6, 1.7 butt cheeks in. 1.7 तक. And he looks like a frontline bowler. I know it's still early, but at least वो आसार नजर आ रहे हैं. आसार ही होता है, एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं. अच्छी लैंड करी थी बॉल. One delivery which didn't result in anything, it was a dot delivery. Oh, spun a mile. It spun a country mile. बहुत ही कुत्ती बॉल थी वो. That was his best delivery, even though he gets wickets off other deliveries. 9.5. Really glad, because हम बार बार ये कह रहे हैं, a lot of Pakistan's success or potential success in this upcoming T20 World Cup campaign hinges on Shadab Khan. और ये काफी ज्यादा लोगों को बात पसंद नहीं आती. ना आए पसंद लोगों को बात, उसने तो कर दिया ना परफॉर्म. है, ये रियलिटी है. और वो हसन का लौंडा है, लड़का नहीं है वो, लौंडिस है उसका. अच्छा, नवाज. अच्छा, वो लॉन्डिस तुझे पता है ना, एक पेट्रोल पंप होता है इंग्लैंड में, बताया मैंने तुझे. नवाज, none for 40. None for 40. It's not his fault he was overbowled. He shouldn't have bowled more than 2 overs. वो ठीक है, लेकिन हम तो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं ना. Wasn't impressive at all. He took a couple of really good catches. एक इसने फंबल कर सेकंड ग्रैब पे लिया था, और एक इसने अच्छा लिया था. जब बाकियों ने अगर टीम ने 2 छोड़े और इसने 2 लिए, I'd give him some marks for that, but not a passing grade. None for 40 doesn't warrant a passing grade, so I'll give him 3. नहीं, none. हाँ, नहीं, 2. तुम कजन सैल को नवाज से ज्यादा मार्क्स दे. मैं दोनों को 2 दिए. मैं नवाज को कजन सैल से थोड़ा ज्यादा मार्क्स. 129. हाँ, 128 कंसीड किए हैं. 40 रन 4 ओवरों में आपका मेन स्पिनर दे रहा है. रियली बैड डे एट द ऑफिस. वो 3 कैच क्यों ना पकड़ ले. 2. चलो 2 is fair. 1 point for each catch. और बॉलिंग पे तो कोई मार्क्स नहीं मिलते, बैटिंग काट ही रहे हैं मार्क्स सारे. हाँ, बैटिंग तो आई नहीं. 2 is fine, but again he's allowed an off day. He's had a phenomenal 2025. राना फॉर्म को 1 ओवर में 10 रन पड़ गए, वो भी आखिरी ओवर था पावर प्ले का. वैसी टीमें मारती हैं. I'm not going to be overcritical. He should have, either he or Saim, one of those two should have taken the new ball. That's what should have happened. Vaz Junior. Yeah, I know that we are both not for Vaz Junior bowling 2 power play overs, and he's been doing that. But he was really good. This was the best he's bowled in the power play. Probably one of the best performances in the power play by Vaz Junior that I've ever seen. Because he kept hitting that channel. Oh, that was so impressive, यार. एक जो इसने चौका खाया ना पावर प्ले के अंदर, वो इसने विड्थ दे दी थी. और निशांका विड्थ थ्रू हिज हैंड्स एट विड्थ तो खाएगा वो. विड्थ वो खाता है, पुल पे भी खाता है. पुल पे आउट किया उसे. हाँ, ये मैं कहने लगा था. उसी ने आउट किया ना. Vaz Junior got Nisanka off his 8th delivery. Nisanka, their best batter. Yeah, really good stuff. What does he end up with? 2 for 7. 2 for 7 in 2.2 overs. I think so. Yeah, I think that's what he ends up with, because he was 1 for 7 in 2 overs, in 2 power play overs. इसने आकर एंड में एक विकेट लिए. वो जो हमारे कोटा हाजी भाई नहीं दे रहे. हाँ, कोटा हाजी भाई ने वो दी नहीं, मगर यार 2 for 7 in 2.2 overs, phenomenal stuff. You know, I didn't pick him in my squad for the T20 World Cup in that previous podcast. यार वो इतना फनी हुआ है. इसने हारिस रऊफ और वैज जूनियर के बीच में रखा हुआ है, एंड में ही पिक्ड हारिस रऊफ, और 18 में नहीं डाला वैज जूनियर को. मैं, by the way, if you watch that podcast, मैंने slashes इसलिए लगाए हुए थे क्योंकि वहां पे कोई भी बंदा पिक हो जाए, मुझे ज्यादा मसला नहीं होना. मसले की बात नहीं थी ना. But I do feel कि वैज जूनियर hasn't really put a foot wrong.
Deserve तो करता है I thought उस पॉडकास्ट की एक्सरसाइज ये थी कि हम सिलेक्टर्स बन गए, we have to select a squad. अच्छा, आम तौर पे मेरे लिए बड़ा आसान होता है स्क्वाड सेलेक्ट नहीं करना. This मुश्किल was a difficult It was a one. मुश्किल It was proper, It was a मुश्किल one. nerve-wracking one. कुछ तो select themselves, कुछ इस तरह की situations थी कि जहाँ पे आप कहते हो कि यार इन दोनों को लेके जा सकते हो आप. Yeah. कुछ इस तरह की सिचुएशन थी, दोनों नहीं चाहिए लेकिन एक आना पड़ेगा. बिल्कुल. खैर वैस जूनियर डिजर्व तो करता है, इवन दो मैंने रखा नहीं, मगर मैं अगर हो तो मैं खुश हूं इसके लिए. अगर वो 14 बॉल्स में 7 रन्स कंसीड करके 2 विकेटें ले रहा है, Yeah. अपने प्रेफर्ड फेज में बॉलिंग नहीं करवा रहा, न्यू Exactly. बॉल में करवा रहा है, यार बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस. ट्रू. नंबर काटूं का मैं? नहीं काटने. नो 8.5 9 9 शदाब से ऊपर नहीं दे सकते इसलिए 9. नहीं, आप शदाब से हाँ ऊपर नहीं दे सकते ना. तो वो 9.5 चाहिए. 9.25. चलो 9.25. या क्योंकि वो 0.5 कम भी नहीं करना. वैस जूनियर बेचारे ने कोई गलती तो नहीं की. हाँ. और लाइक यू सेड आउट ऑफ फेस बॉलिंग भी कराई है. Yeah. और अब तो वो और कन्विंस हो जाएंगे कि इसको 2 पावर प्ले ओवर्स ही देने हैं. खैर लेट्स सी व्हिच सीमर सिट्स आउट द नेक्स्ट गेम, बिकॉज़ आई एम पॉजिटिव नसीम शाह इज प्लेइंग द नेक्स्ट. हाँ, he has to play the next ये game. रोटेट करेगा सीमर्स. सलमान मिर्जा, I mean, what a start to his T20 career, man. मजा आ गया. 3 power play overs, 1 for 17. Dismisses Kamil Mishara with his 8th delivery. Yeah. Gandhi shot थी. shot बहुत Nothing गंदी. shot. हाँ, Yeah. बहुत गंदी shot Holds थी. out to mid off. Yeah. But Salman Mirza लेता आ रहा है विकेट. but the ball just kind of got a little bit big on him. Yeah. थोड़ी सी ना वो ड्राइव के लिए टाइप ऑफ जा रहा था लेकिन थोड़ी सी ऊंची हो गई. वो लॉफ्टेड ड्राइव सही उसकी कनेक्ट हाँ. नहीं हुई. बट एनीवे ही इज बीन फिनोमिनल इन द पावर प्ले. इसको सही इस्तेमाल करते हैं. Yeah. They always give him 3 power play overs or more often than not, and he should be bowling 3 power play overs. When he's bowling good. Yeah. So 1 for 17 and 3 power play overs was phenomenal. उसके बाद आकर और विकेट ले गया. शानाका और चमीरा. अब नहीं, शानाका की विकेट शानाका तो बहुत इंपॉर्टेंट उसने विकेट तो फेंकी विकेट अपनी. लेकिन वो तो गिफ्ट की. बिल्कुल ही. बट लुक, ही एंड्स अप विद 3 for 18 in 4 overs. Crazy. In his death over, he takes 2 wickets and gives away 1 run. हालांकि हम तो रेट भी नहीं करते उसको डेथ पे. हैसन करता है. हैसन करता है. बट आई फील के जाहिर है जब एंड में 2 विकेट्स आई हैं तो उनकी थोड़ी सी वेटेज गिर जाती है. बट आई फील लाइक ही हैड द एग्जैक्ट सेम परफॉर्मेंस एज वैस जूनियर, इफ आई एम बीइंग रियल. लाइक 9.35. वो 2.5 था. हाँ, 9.35. इसको 9.35 दे दो क्योंकि वो दोनों लाइक them doing well in the power play really does help Pakistan, and you know I think Salman Mirza is a revelation of sorts. वही कैच छोड़ा था 9.25. ओए हाँ, नहीं 9.25. नहीं, he was really good with the ball यार. he was really good, but आधा मार्क पे काटूंगा मैं. 9 ही दूंगा. 9.25. Abrar. He was really good with the ball too. Really good. इसने आकर असलंका को आउट किया था, who was looking like their best batter at that और time. बहुत खूबसूरत बॉल थी. Yeah. I mean, he ends up with what, 3 for 25? Yeah, very good. Solid stuff. अबरार को साथ में नहीं डाला था टीम में. मैंने नहीं डाला था टीम में. Yeah. मैं सूफी मैक को डाला. ये सूफी मैक को लेके था. रिजर्व्स में था मेरे. हाँ, बट अबरार, आई मीन मैं तब भी उस पॉडकास्ट पे कहता कि ही इज डन नथिंग जिसके बेसिस पे आप निकाल दो उसे. हमारी मेरा काउंटर आर्गुमेंट ये था सूफी मैक ने क्या किया है. उसने भी कुछ गलत नहीं किया. तुम्हारा काउंटर आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक था. आई गेस ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड. लेकिन वहां पे भी ना वो स्लैश वाली बात जो तुम्हारा रैशनल था ना, जो मर्जी जाए आई विल बी हैप्पी. अबरार ऑब्वियसली पेकिंग ऑर्डर में आ गया. वो जाएगा 100%. पक्का जाएगा. एंड यू नो पहले ये 1 for 28, 2 for 28 कर रहा था. यहाँ पे आकर इसने 3 जो विकेट ले ली. जब ये 3 विकेट लेता है फिर मजे कराता है. 3 for 25, टेक माय मनी. एंड यू नो ही कैन आल्सो बोल एट द डेथ. और ये भी किए हसरंगा वाली सेलिब्रेशन की पहले किसी और को आउट करके असलंका को आउट करके हसरंगा सेलिब्रेशन की. देन हसरंगा को आउट करके हसरंगा सेलिब्रेशन कर दी. फिर लियानगी को भी आउट किया. उस पे नहीं सेलिब्रेशन की. लेकिन आउट तो किया ना. बट अच्छा मजा आता है व्हेन ही डज दैट. आई एम ऑल फॉर इट. इसको भी क्या ही मार्क्स काट. कोई हसरंगा ने मिडिल फिंगर दिखा दी किसी को. वो मैंने तो कैच मैंने भी नहीं कैच की. आई डोंट थिंक इट वुड हैव बीन इंटेंशनल. नहीं, वो किसी को नहीं, एज इन साहिबजादा फरहान को जब आउट किया था तो उस वक्त किसी और को दी थी. अच्छा. एनीवे, अबरार के भी क्या ही नंबर काटोगे? नहीं काटोगे. 9.45. 9.45 क्योंकि बस वो शदाब ने मैच जिताया. वो प्लेयर ऑफ द मैच था. हाँ. वो 9.5 है तो ये 9.49 कर दो. हाँ, 9.49 ही कर दो क्योंकि 3 for 25 is a solid effort. इसने तो कैच भी नहीं छोड़ा. और he was really good. गंज करा कर आया हुआ थोड़ी सी. गंज तो नहीं बट वो गोल उम्रा करके आया अपेरेंटली. मुबारक को बहुत. सीन ये कि 3 इंपॉर्टेंट विकेट है ना. वेरी इंपॉर्टेंट विकेट्स. इसलिए 9.45. या आई मीन असलंका विकेट इज रियली इंपॉर्टेंट. और हसरंगा को भी जब आउट करता है काइंड जस्ट फ्लोर्स देम. लियानगे को भी किया है. लियानगे को इवेंचुअली फिर लियानगे को कर ही दिया इसने. नवाज टेक्स दैट कैच राइट. या होगी प्लेयर रेटिंग. सारे बुक गए ने
चरखे दे गेड़े हो गए हैं यार। चरखे दे गेड़े हो गए यार, ये और कोई बात ही नहीं रही करने वाली। देख लो, तुम नोट्स पढ़ो, मैं इन्हें बता देता हूँ। जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट कौन होते हैं। डिस्कॉर्ड में एक स्पेसिफिक चैनल है जहाँ पे आप बेराम से मेरे से बातें कर सकते हैं और फैंटेसी में पार्ट ले सकते हैं, प्रेडिक्टर में पार्ट ले सकते हैं। फैंटेसी अभी T20 वर्ल्ड कप की आ रही है, मार्च से ने रिप्लाई कर दिया था, वो कह रहे हैं कि आ जाएगी। ठीक है, उसका पार्ट बनने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से बन जाए। इजी पैसा है, 031936025545 इज द नंबर। बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे और आपको डिटेल्स मिल जाएगी। 1500 पर मंथ पे आपको बना देंगे हम जानी। अगर वैसे डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है तो यू फ्री टू ज्वाइन, कोई भी आके किसी से भी बातें कर सकता है हमारी कम्युनिटी में। But if you want to talk to myself and Saad exclusively, then you'll have to become a Jani. Yes, and sir. even if you live under a rock in big 2026 and still don't have online banking, don't worry, Saad and I've got you covered. We live in Islamabad and our office and studio is located in the E113 Markaz. So come seek us out और मुंह पे मारो 1500 रुपए. And per 1500 payment will make you the Jani of the podcast for 1 month. Yeah. उसके ऊपर भी if you gift the Pro Sports Podcast an authentic sports jersey, we will make you Jani the podcast for 6 months. Yeah. And if you gift us any pink jersey, नोमी पार्नी ग्लासेस, साजिद खानी ग्लासेस या उस्मान तारिक का बैंडाना एक बॉय ने ले लिया, एक बॉय ने ले लिया है, उन चारों चीजों पे 1 ईयर की मेंबरशिप है जानी द पॉडकास्ट और मिडिल सेक्स की जर्सी पे 13 मंथ्स की है। ये दिखा नोमी दोनों पिंक जर्सियां आ चुकी है। मैं बॉय ने भेजी हैं। मैं उतनी देर आपको बता दूं, ये जो पोस्टर्स हैं shop.prosports.pk पे जाएं और पाकिस्तान में अभी सिर्फ अवेलेबल हैं ये, आप डिलीवर करवा सकते हैं। बाबर आजम वाला, इफ यू वांट पाकिस्तान टू विन द वर्ल्ड कप एंड बाबर आजम टू बी द हाईएस्ट रन स्कोरर, सिमिलरली शाहीन अफरीदी हु इज गेटिंग फिट, विन द वर्ल्ड कप, ये वाले पोस्टर्स ले लें। कैच, ये पिंक जर्सी भी आ गई है, ये देखो, तुम पहले दिखा दो। अजद पाशा यू लेजेंड, ये हम लगाएंगे। सादी के पास दिखाओ सिडनी सिक्सर्स वाली। सिडनी सिक्सर्स, I really like that Sydney Sixers jersey, bro. It is a good one. It's a beauty. Yes, ठीक है, sir. और पाकिस्तान की पिंक तो ये कश्मीरी चाय वाला जो कलर है मुझे वैसे ही बड़ा पसंद है। तो ये देखो 2 पिंक जर्सी आ गई है। बॉय ने सीधा 2 साल की मेंबरशिप यहीं ठोक दी है। मैंने तो यहीं रख ली है। यहीं रखते हैं हम। यहीं रख दो, यहीं रख दो ये। अच्छा, what changes would you make? For the second one. और ये नोमी पार्डा पोस्टर भी यार, ट्रक आर्ट वाला खरीदो। इम्मी के का विंटेज पोस्टर है, दोनों मैंने तो खरीदे हुए, नोमी पार्डा और इम्मी के वाले। एंड देन पेस स्पेस यार, पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग क्रिकेट हेरिटेज या पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग हेरिटेज, पाकिस्तान क्रिकेट फास्ट बॉलिंग हेरिटेज, पाकिस्तान क्रिकेट फास्ट बॉलिंग हेरिटेज। इम्मी के, वैज, शेबी, वैकार, व्हाई वुड यू नॉट वांट दोस गाइस ऑन योर वॉल? यस सर। अच्छा, अच्छी लग रही हैं यार ये जर्सियां, इधर मजा आ रहा है मुझे। अच्छा, changes, I'd bring in everyone who was on the bench. I don't care. I don't want to win the series. I'd bring in Nafi and Usman Tariq and Naseem. I'd also give a game to Abdul Samad. I know उसकी, तुम कहते हो कि टीम में जगह नहीं बनती। Does not matter. Does not matter. सलमान की he जगह deserves आ a सकता game. फखर की जगह आ सकता है, बिल्कुल आ सकता 4 पे खिलाओगे? है। खिलाओ, शादाब को ऊपर करो, इसे 5 पे करो। I don't think they're going to drop either of Shadab, Nawaz और Fahim. और Fahum क्या कह दिया? Does not matter. Shadab can play at 4. I'd give him a game, bro. True, actually. He deserves it. देखो, No, that actually makes sense. If you bench Fakhr, Shadab comes at 4, Nawaz comes at 5, then 6 पे समद आ सकता। देखो, अगर तो उसको कजन साहिल और उस्मान खान भी तो हैं। अच्छा, सुनो तो सही ना। उनको उस्मान खान 5 पे आ रहे। खैर, मेरी बात सुनो। अब्दुल समद को अगर इन्होंने 3 स्क्वाड्स में रख लिया है ना और अभी तक गेम नहीं मिली, तो ज्यादती है। या तो उसे रिलीज करो, वो जाके फर्स्ट क्लास खेले, या उसे गेम दो। मैं तो वरना फटे डाल दूंगा, रखा क्यों? I think going with your strongest 11 in the first game was fine. और barring सलमान अली आगा batting at 3, it made sense as well जो टीम थी आपके पास. Although we would open with Fakhr. हाँ, बट इफ दे वांट, अगर वो उन्होंने वो रखा हुआ है कि बैकअप में हसन नवाज की जगह हमने अब्दुल समद रिप्लेस कर दिए, तो ब्रो वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेला ही खेला तो है, लेकिन बहुत अरसे से नहीं खेला। और T20 वर्ल्ड कप में जरूरत पड़गी तो आप डाल दोगे उसे। क्या कर रहे हो? आई डोंट नो। फिर वो स्क्वाड में क्यों है? उसको शायद ये ले भी जाएं। मैं यही कह रहा हूँ, फिर वो स्क्वाड में क्यों है? अच्छा, वैसे बेचारा हुसैन तलत जो है ना, नहीं वो बेचारा तो नहीं, he didn't deserve to be in the T20 squad, but उसको चांस भी मिला है। एक श्रीलंका वाला एशिया कप में मैच जिता दिया। एक मैच उसने जिताया है, but you know we never even discussed him after that. BPL खेल रहा है। अच्छा, खेल रहा है कुछ। चलो, अच्छा, तुम क्या चेंजेस तुमने बता दिए? मैंने कहा तो है मैं नाफे और उस्मान तारिक और नसीम को लाऊं। मैं चारों को ले आऊं। तुम समझ भी खिलाओ। ये लाएंगे सबको तीसरे में, जो कि वॉश आउट हो जाएगा। शायद अगला ही हो जाए। नसीम खेलेगा। नसीम नेक्स्ट, कल है ना, नसीम खेलेगा। हाँ, प्रॉब्ली वैस जूनियर को बिठाएंगे। That's what I feel. They could also bench Salman Mirza. They could. Doesn't matter.
3 bowlers हैं, 2 गेमें खेलनी है. It doesn't matter who they bench in terms of the fast bowlers because I know कि वो यही करता आ रहा है हसन. ये अपने fast bowlers को 3 मैच T20 सीरीज में 2 मैचेस देता है. हाँ, अभी सलमान मिर्जा और नसीम है फॉर एग्जांपल अगले मैच में, तो उस अगले मैच में वसीम और नसीम हो जाएंगे. I'm not even opposed to that strategy. I feel like it makes sense. हाँ, ठीक है. अच्छा सही करता है. Yeah. अच्छा खैर ये तो हो गई बातें. या और एशेस का सॉरी यार कोई टाइम ही नहीं बचा. इसके बाद हमने लाइव भी आना है वो ऑक्शन के लिए लाइव आ रहे हैं. या वी थॉट अबाउट इट. आई नो कि रूट का भी 100 है फाइनली रेड बॉल के खिलाफ. हाँ हम इन ऑस्ट्रेलिया बस बता देते हैं ना, रूट का 100 गुड वर्क. ट्रेविस हेड पागल हो गया. 629 runs at 62.9 as opener. Yeah. Steve Smith 300s. Steve Smith 100. Bo Webster was good. Yeah. Bo Webster बहुत अच्छा खेला. Jacob Bethel कमाल सेंचुरी. Jacob Bethel is one of 5 players in history now who have scored their first list A 100 in an ODI and first class 100 in a test. और वो 154 शायद करके गया है. Was phenomenal. Root also scores 160. I know a lot of people would have said कि he scored 100 in Australia versus the pink ball, not the red ball. Red ball से भी आगे. खत्म है. Steve Smith को उन्होंने दे दिया 100, ड्रॉप कर दिया कैच. 6 catches ड्रॉप किया इंग्लैंड. England have dropped more catches than I have like fingers and toenails combined. Something like that. In the series. Yeah. Bo Webster बेचारे ने आकर प्रूव कर दिया. Unbeaten 71, then bold spin 3 for 64. गलती कर दी मैंने. Yeah. लेकिन the most important story of the test match is was someone who didn't perform. Is Uzi Khwaja retiring, hanging up his boots at the SCG, उसका home ground पे. बिल्कुल. Good farewell. Fantastic farewell. Did not perform. वो एक अलग बात है, लेकिन he should go. He's one of अगर देखा जाए इस decade का तो one of the better openers for sure. नहीं, for those 2 years in between he was an all-timer. हाँ, overall अगर उसका career देखा जाए तो one of the most important players for Australia. Absolutely. Very, very important players. In terms of Australian cricket, an extremely important player. You guys can go listen to my Footmarks podcast with Jared. उसमें पूरी डिटेल ज़्यादा तफसील में बात है, but old man ख्वाजा हो गया था वो. 39 years of age. वो वाली बात नहीं थी ख्वाजा की. एक अच्छा मैच खेला सीरीज में when he scored 82 and like 42 or something. अच्छा मैच था उसके लिए, but look, he is someone. वो तीसरा मैच था ना. हाँ, तीसरा टेस्ट था. He had lost form and his runs had dried up. In the last 2 years he's done nothing. तुम्हारी नहीं बल्कि जैरेड और तुम लोग ये डिस्कस करते हो क्लस्टर बैटर. वो पर थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, उजी ख्वाजा का क्या सीन है. So Jared and Shayan when they were writing the art of batting, top 50 के अंदर कंसिडर किया उन लोगों ने उस्मान ख्वाजा को because he went so berserk as opener. He did. By the way, he's got a very respectable career for Australia. 6,229 runs in 88 test matches, an average or batting average of nearly 43. Those are really good numbers, even if the runs had dried up. ठीक है? He's the 15th highest run scorer for Australia. Yeah. He has scored the 7th most runs after turning 35 in test history. इसके ऊपर मिसबा, यूनस, Dravid, Sachin, Gooch, and one player who I always forget for some weird reason. Yeah. ये सारे लोग आते हैं, ठीक है. But look, very, very distinguished and respectable international career. Numbers तो आपको बता दिए, but what stands out is that as opener in Test cricket, he averaged 48 plus with the bat. And these runs come in the pace-playing pandemic, in the wobble seam era, when it gets tough for batters. सारों की average गिर रही है, ख्वाजा goes berserk as opener. And berserk in his own way. He's not a very attacking batter. Leecher आदमी है, ठीक है. Really strong on the pull, really strong square of the wicket on the cut. And then sweep तो थी ख्वाजे की. फिर वो funny scene है यार. So you talked about the cluster batter thing or spree batter, whatever terminology you like. Khwaja is the epitome of it. His career, if you look at his performances across the years in a graph, it's crests and troughs. In his or during his peaks, he's an all-timer. In his worst days, he is bad. He's a struggling first class cricketer. First class level पे भी runs नहीं आ रहे. इतनी low troughs हैं उसकी. But started his career in 2011 उसी Ashes के अंदर जो इंग्लैंड जीती थी. Last test Sydney में खेला. He starts his career versus England in Sydney and he signs off versus England in Sydney. इस तरह की story जो है ना, fairy tales. About what 7 or 8 comebacks. इतनी दफा drop हुआ है, sometimes fairly, sometimes unfairly. Let's be real, ठीक है. He was really good in Asia. हाँ, और पता है it's remarkable how Saadi, remember that Sri Lanka tour? Yeah. Sri Lanka won 3-0, Khwaja couldn't buy a run. And I was like, oh, they've got an Asian, ethnicity wala batter and he can't bat in Asia. Well, that might be the end of his career. No. He
literally turns the tide. Yeah. Not just by a bit. Oh. He ends up with a test batting average of 61.8 in Asia. इंडिया Apart- पाकिस्तान श्रीलंका हाँ, बांग्लादेश भी है इसके अंदर, बांग्लादेश। यूएई भी है इसके अंदर, क्या कर रहा है? दुबई के अंदर ही तो टेस्ट मैच बचाया था इसने, याद है? ही सेव्ड दैट टेस्ट। मोहम्मद अब्बास सीरीज, मैं यूएई भूल चुका हुआ था मोहम्मद अब्बास वाली सीरीज, मैं कसम से भूल चुका हुआ था यूएई It's in the test as well, the documentary, वो Yeah, जो yeah. docu-series थी. But yeah, look, apart from Alan Border, he is only the second Australian cricketer to have scored test runs in India, Pakistan and Sri Lanka. Yeah. That is quite a legacy. So the fact that, and he credited Justin Langer for this, कि JL told me that you can play spin, you can do this. उसने back किया उसको. हालांकि JL and his relationship is an interesting one. Khwaja was It is an interesting he was the one. spokesperson of Yeah. that team. If you watched the Yeah. test, you would have seen that. कि वो Langer को बताता है कि some of these guys, everyone's feeling a little uncomfortable. They feel like they can't open up to you, and he's the guy who leads that charge. और फिर उसको JL ने फिर निकाल भी दिया था. So anyway, he did admire JL for keeping the faith, so I'm sure that's a good relationship over there. But look, his game versus spin in Asia and that batting average of 61.8 and hundreds in India, Pakistan and Sri Lanka, that speaks volumes. बट ये तो ऑन फील्ड स्टफ है ना और भी चीजें। he was very important off the field as well. Off the field पे आते हैं, ख्वाजा was really really good on flat decks. Impossible to get out on flat decks. उसमें तो उसकी draws में average 80 type है, but even in Australian wins he's averaging 50 plus. Yeah. So if he scores, they're set up. उसके बाद versatile batter. Yeah. Batted as opener in the middle order at 3, हर जगह ही batting की है, comeback इतनी दफा की है, and then that peak. We really need to talk about the peak. Sydney Test, Yeah. that Ashes series 21 I think. Yeah. Travis Head gets COVID. Khwaja तब भी खत्म था. Yeah. Everyone thought his career is done and dusted. Comes back, Comes scores back, twin tons. Yes, sir. 2 tons in the same test, fancy celebrations as well. Goes mad after that. In 2 away series, big ones. An away BGT, Border Gavaskar Trophy, and an away Ashes series. He's the top run scorer across both teams. That was quite something. Everyone thought he'd fail in England. He was top run scorer. India में जाकर Border Gavaskar Trophy में both teams के cross top run scorer. That means something. ठीक है? And yeah, I feel कि white ball career में भी वो इंडिया को सीरीज जो मारी थी, याद है ODI सीरीज? T20s में उस तरह उतना अच्छा प्लेयर नहीं था. Obviously, Game was too fast. Even Isaba rightly century मारी थी उसने. That was about it. He had his phases in T20s, but ODI cricket was always going too fast for Khwaja. वो नहीं catch up कर पाना था उसने. Saad proper ये test batter. Yeah, हाँ, नहीं, a throwback. He would be remembered for his test Exploits. career. Yeah, test career. A proper throwback batter. Yeah. Love to watch him bat. Love to watch him or listen to him. Listen to him. Yeah. Wow. Like you said, one of the most important cricketers for Australia because of his off-field stuff. Yes, sir. Like he was unapologetically himself. I love that. Proud of his roots and values. Yeah. ठीक है, he owned his space. When the people's champ would speak, people would listen. He never shied away from speaking his mind and never dodged the tough conversations. He broke down barriers and stereotypes. He inspired a generation. And you say something nice about Usman Khwaja on the internet and the bigots come storming. यही तो sign है. That's exactly why he said what he said in his last press. यही तो sign है. He wasn't trying to be divisive. If anything, Usman Khwaja brings people together. लेकिन नहीं ना. Brings good people together. Good people together, yeah. But he has faced a lot of things in his career and he's come and spoken about those. You should be responding with empathy. बस आप लोग मैं I don't want to get into that debate. ये आम case study नहीं है. He is the first Muslim cricketer to don the baggy green for Australia, to play test cricket for Australia, who's also of South Asian descent. And South Asian matters because end में वहां पे racism रंग पे हो रही है. रंग पे ही होती है. ठीक है. और किस पे होती है? आप लोग खुद किस पे करते हो? हाँ, वो देसी है तो उसको वो किए तो वो इंडियन होता पाकिस्तानी होता उससे फर्क नहीं पड़ना था. ठीक है. But he spoke up time and time again. He became the face of New Australia. And this guy was a pilot as well, by the way. Yeah. Licensed pilot है ख्वाजा. Sikandar Raza Butt would be jealous. Do you think वो after hanging up his boots वो cricket में काम करेगा या pilot बनेगा? I'm really fascinated to see what he does after retiring because he could be a really good commentator. He could have a podcasting career. He could be a brilliant podcaster. मैं तो कहता हूँ commentate करे और दुनिया में अपना जहाज लेके जाए. मैं उड़ा के जाऊँगा. यार politician भी बन सकता है. He is literally kind of cut out to be a politician. Look, he was one of the few people who raised his voice for Palestine. And he also raised his voice for Bondi. Yeah. In fact, it was almost fitting and iconic when at the start of the Sydney Test, he shares that embrace with Ahmed Al-Ahmed. Yes. I love Australia in this sense. They're really growing as a nation. They've become pretty woke up. Credit to Pat Cummins for facilitating him. Champagne nahi party thi when they won the World Test Championship, man.
वरना इंग्लैंड में ओवेन मॉर्गन ने पहले सेलिब्रेट किया था मोइन और आदिल के साथ, फिर उनको साइड पे करके शैंपेन फाड़ी थी, पैटी ने फाड़ी नहीं, और ये उसकी भी क्रेडिट टू हिम। बस हम लोग भी कुछ सीख जाएं तो वो एक अलग बात, कुछ सीख लें। He's left a very strong legacy, not just as a really good cricketer for Australia. He was a smart cricketer. He always made himself valuable. Slip fielder अच्छा हो गया, ठीक है, upskilled, always grabbed his opportunities that he got with both hands. Comeback after comeback कर kept speaking his mind and championing causes. I love him for that, and I do look up to Usman Khwaja. I was someone who went abroad and became a citizen of another country. I'm a naturalized citizen who's from Pakistan. I am Usman Khwaja. The only difference is मैं क्रिकेट में बात करता हूँ, वो क्रिकेट खेलता है. Yes, sir. Yeah, तो mad respect for him. Go well in retirement, Uzi, and do something entertaining. Yeah. Be very unhinged. We love you. I love you for being unhinged. आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक कर दें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम, मुझे हर एक को हर जगह फॉलो कर दें। उसके अलावा बूथिया पसंद नहीं हो तो स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, आई हार्ट रेडियो, पैंडोरा पॉडकास्ट एडिक्ट जा जाए यार, वहाँ पे जाके हमें सुन लो। अभी हमने थोड़ी देर में लाइव आना है ऑक्शन के लिए, आप लोगों के पास ये वीडियो बाद में आएगी। अब टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। Boy, Gaza.